Jesus Christ on the third evening of our Blessed Convention 2023. इस धन्य कन्वेंशन के तीसरे दिन की शाम के समय में हम आपको यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिनंदन करते हैं। God opened the way for us this year also that we could keep the convention here for the blessing of this land. इस देश की आशीष के लिए और लोगों की आशीष के लिए ऐसे एक सम्मेलन चलाने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे सारे मार्गों को खोला। For all the blessing and the help which we receive from the blessed hands of our Lord and Savior Jesus Christ, shall we praise God. इस कन्वेंशन के दौरान परमेश्वर ने जो कुछ हमारी सहायता की और जो कुछ हमें आशीष दिया परमेश्वर के धन्य हाथ से, आइए उसको स्मरण करते हुए परमेश्वर की शुक्रगुजारी के साथ उसकी हम तारीफ करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. This evening God should speak to us from His holy word for our spiritual edification. हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आज शाम के समय भी परमेश्वर अपने पवित्र वचन से हमसे बातें करना God should चाहिए visit us according to our needs. और हमारी आवश्यकता के अनुसार God should visit us and God should speak to us. परमेश्वर उसके लिए उसके अनुसार हमसे बातें करना चाहिए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Lord, we praise you and thank you, Lord. Thy people have come in thy presence. Oh God, thou knows their needs, thou knows their problem, thou knows their worries and cares, O Lord Father. Even some of them may be having sickness in their body. Lord Jesus, thou art our Savior. We pray thee, O Lord, deal each and every one of us according to our needs and set us free from all our burden, worries and cares. Lord, only we want to hear thy voice. We are nothing. We are only dust and ash, O Lord. We do humble ourselves, my Savior, and committing ourselves and this entire church, entire thine people, those who are seated here in this meeting hall, O Lord. Cover us under thy precious blood. Speak to us and help us to grow in our spiritual life tonight through thy holy word. We do ask this prayer in Jesus' name. आमीन। Amen. Shall we open our Bibles and come to the Gospel of St. John, chapter 8, and let's read verse 32. आइए हमारे धर्मशास्त्र को यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 22 वचन की ओर खोलें। 32. 32 वचन की ओर। John the Gospel, chapter 8, verse 32. यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का उसका 32 वचन पढ़ेंगे। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You shall know the truth, and the truth shall make you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। I believe you all know that this verse we put on our convention notice of this year, Jaipur convention. इस साल के भी जो जयपुर के कन्वेंशन का नोटिस था, उस नोटिस के ऊपर भी हमने इस वचन को डाला था। This was the main verse we see there on the top. It was written, "Commandum that ye shall know the truth, and the truth shall make you free." उस नोटिस के ऊपर हमने ये मुख्य वचन डाला था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। Brother and sister, when we will know the truth, it will bring great blessings in our lives. परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, जब हम सच्चाई को जानेंगे तो वो सच्चाई हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को देगा। Because only the truth can brings blessing in our lives, not anything else. और केवल ये सच्चाई ही हमारे जीवन में आशीषों को लेके आ सकती है और कोई दूसरी वस्तु या कोई चीज नहीं। There is nothing else apart from this truth which could bless us, deal with us, save us, and also protect us. इस सच्चाई को छोड़ के कोई भी दूसरी अन्य वस्तु हमारे जीवन में आशीष को, छुटकारे को और परमेश्वर के उस व्यवहार करने के अनुभव को हमारे जीवन में नहीं लेके आ सकती। Here we have read that ye shall know the truth, and the truth shall make you free. हमने यहाँ इस रीति से पढ़ा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So this verse reminds us that we are bound in something. ये वचन हमें इस बात का स्मरण करवाता है कि हम किसी चीज के साथ बंधे हुए हैं। That's why the word of God says, "You shall know the truth, then truth shall make you free." इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। So it shows that man is under the bondage, or he is bound
certain things whereby God said, you must know the truth, then only you can come out from your bindings. इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य है वो किसी ना किसी बंधन में या किसी ना किसी बंधवाई में बंधा हुआ है, इसलिए परमेश्वर यीशु ये कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। So I will tell you, today's man is bound with three things. इसलिए मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आज का जो मनुष्य है वो तीन बातों से बंधा हुआ He है। is bound with the three things we can see from the word of God. हम परमेश्वर के वचन से ये देखेंगे कि आज का मनुष्य तीन बातों से या तीन कामों से बंधा हुआ है। Number one, man is bound with Satan, say the word of God. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहला सर्वप्रथम जो मनुष्य है वो शैतान के द्वारा बांधा गया है। Man is bound with Satan, say the word of God. मनुष्य जो है शैतान के द्वारा बांधा गया है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। When we read Gospel of Saint Luke chapter 13, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, Luke chapter 13 and when we read verse 11, लूका सुसमाचार उसका 13 अध्याय का जब हम 11 वचन पढ़ते हैं, there we read about one woman who was bound with the spirit of infirmity. वहां हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो दुर्बलता की आत्मा के द्वारा जकड़ी गई थी। Read in Hindi please. और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। Here we have read about one woman. यहाँ हमने एक स्त्री के बारे में पढ़ा And it is written, she had a spirit of infirmity 18 years. और यहाँ वचन ये कहता है कि 18 साल से वो एक दुर्बलता की आत्मा से जकड़ी हुई थी She was bound together और वो कुबड़ी हो गई थी and could in no wise lift up herself. और किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। And she was healed by Lord and Savior Jesus Christ. और उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा वो छुड़ाई गई और चंगी की गई। But we see there were people who opposed Jesus. Why Jesus healed this woman on Sabbath day? लेकिन हम वहां कुछ लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह का विरोध करने लगे कि क्यों यीशु ने सब्बत के दिन में उसको चंगा किया। Sabbath day, on the Sabbath day, no such work should be done. सब्बत के दिन ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जाना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। But we see here, Jesus answered and said, हम यहाँ देखते कि यीशु मसीह ने उत्तर दिया। read verses 14 and 15. 14 और 15 वचन पढ़े। इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगा हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को तान में खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? 16th verse. और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So here, brothers and sisters, we have read, Jesus told that this woman whom Satan hath bound for these 18 years. यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो स्त्री है जो जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध के रखा था। So she was the daughter of Abraham, it is told, Jesus said. यीशु मसीह ने ये कहा कि वो अब्राहम की संतान है। So in one sense we can say that she was not an unsaved person, she was saved. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो उद्धार पाई नहीं पाई हुई स्त्री नहीं थी, वो एक बचाई या उद्धार पाई हुई स्त्री थी। Because God said, I am the God of Abraham. क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। When God said, I am the God of Abraham, that means the daughter of Abraham, she was also saved. और जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, तो उसका अर्थ ये है कि वो जो अब्राहम की बेटी है वो भी उद्धार पाई हुई But है। we see she was bound for 18 years by Satan. We have read here. लेकिन हमने And इस this was जगह also told by Jesus. इस जगह में हमने ये पढ़ा और यीशु मसीह ने ये कहा कि ये स्त्री जो 18 साल से शैतान के द्वारा बांधी गई थी। Spirit of infirmity, it is written there. ऐसा यहाँ ऐसा लिखा है कि दुर्बलता की आत्मा। That means she was bound with the spirit of infirmity. She could not able to look up, always looking down.
इसका अर्थ यह है कि वो एक दुर्बलता की आत्मा के द्वारा बांधी गई थी, जिसके कारण वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती और ऊपर नहीं देख सकती। So what it shows? इसका अर्थ क्या है? Brothers and sisters, Satan is always keeping the people of God, the children of Abraham, always weak. इसका अर्थ यह है कि जो शैतान है वो परमेश्वर के लोगों को या अब्राहम की संतान को हमेशा कमजोर करके रखना चाहता है। Abraham is called the father of believers. ये जो अब्राहम है वो विश्वासियों का पिता कहलाता So है। here we have read that Jesus told she was the daughter of Abraham. इसलिए हमें इस जगह में पढ़ा कि वो अब्राहम की बेटी है। That means she was a child of God. उसका अर्थ कि वो परमेश्वर की बेटी है। But see how much devil made her weak. लेकिन देखिए कि कैसे शैतान ने उसे कमजोर बनाया। Not only 1 and 2 years, केवल 1-2 साल के लिए नहीं, not only 10 years, 10 साल के लिए नहीं, it is told 18 years. ऐसा कहा गया है कि 18 साल तक। For 18 years we see she was bound by the Satan. हम देखते हैं कि वो 18 साल तक शैतान के द्वारा बांधी गई थी। So therefore I have told you man is bound with Satan. इसलिए मैंने आपको ये कहा कि शैतान के द्वारा मनुष्य बांधा गया। But today those who are having are bound, clutches of Satan, are bound with Satan. Tonight there is a good news for such people that you will get the deliverance tonight. लेकिन आज रात के समय जितने लोग शैतान के द्वारा बांधे गए हैं, आपके लिए एक शुभ संदेश ये है कि आज यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। So you listen very carefully the message, the word of God, and definitely all of us we will be blessed by God. If anyone having any kind of binding, they will be set free. इसलिए आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और निश्चय परमेश्वर आज रात आके आपके जीवन में कोई भी बंधन है तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And the second we see man is bound with sin. दूसरा हम देखते हैं कि मनुष्य पाप के द्वारा बांधा गया है। First we saw from the word of God man is bound by Satan. पहले हमने वचन के द्वारा देखा कि मनुष्य शैतान के द्वारा बांधा गया है। And the second place we see man is bound with sin. और दूसरा जगह में हम देखते हैं कि ये मनुष्य पाप के द्वारा भी बांधा गया है। Yes, when we read John the Gospel chapter 8 जब हम यूहन्ना 8 अध्याय में पढ़ते हैं and verses 34 to 36 when we read, 34 वचन से लेकर 36 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, there we see Jesus said man is bound with sin. वहां हम देखते हैं कि यीशु ये कहते हैं कि मनुष्य पाप से बंधा हुआ है। Read those verses please. दया करके उस वचनों को पढ़ें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। here we see Jesus said in verse 34, John chapter 8, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन में हम देखते हैं कि यीशु ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। That means one who commits sin, he is the servant of sin or he is bound with sin. उसका अर्थ ये है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, नहीं तो वो पाप के द्वारा बंधा हुआ है। And a person who committing sin or bound with sin, he has no freedom. He has no his own choice to think about God, to do the will of God. इसलिए जो मनुष्य पाप के द्वारा बंधा हुआ है या पाप का दास है वो स्वतंत्र नहीं, और उसके पास ये सोचने का भी समय नहीं कि परमेश्वर एक परमेश्वर है। Yes, he has no choice even. He has no time to think that he may do the will of God or do some good things. उसके पास ये सोचने का भी समय नहीं और उसके पास ये फैसला लेने का भी अनुभव नहीं कि परमेश्वर है और वो परमेश्वर छुड़ा सकता है, Because his mind is filled with sin. क्योंकि उसका मन पाप से भरा हुआ है, His heart is filled with sin. उसका हृदय पाप से भरा हुआ है। He become the servant of sin, Jesus said. यीशु ने ये कहा कि वो पाप का दास हो गया, And servant cannot do his own will. और जो दास है वो के अपनी मर्जी नहीं कर सकता, He has to do everything what his master will ask him to do. वो वही करेगा जो उसका स्वामी उसे करने के लिए कहेगा। Yes or no? हाँ और ना? Yes or no? हाँ या ना? Yes. So when the servant, the master will say to his servant, you go
to that place and bring that chair from there to here, he has to obey. जब एक स्वामी अपने दास को ये कहेगा कि वहां से कुर्सी को उठा के यहां लाओ, तो वो दास वो काम करेगा। You go to the market and bring the vegetable, he has to go and bring it. He has no another choice. वो मार्केट जाके तुम सब्जी लेके आओ तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, Because he is servant to the master. क्योंकि वो अपने स्वामी का दास है। But here it is written, one who commits sin, he is the servant of sin. लेकिन हम इस जगह में ये पढ़ते हैं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। He is the servant of sin, say the word of God. वचन ये कहता है कि वो पाप का दास है। But in verse 35 it is written, लेकिन 35 वचन में ये लिखा है, the servant abideth not in the house forever, लेकिन दास सदा घर में नहीं रहता, but the son abideth ever. लेकिन पुत्र सदा रहता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brother and sister, प्यारे भाइयों और बहनों, those who are seated here, जो लोग यहाँ बैठे हैं, if any one of you become the servant of sin, अगर आप में से कोई पाप का दास हो गया है, or the sin is ruling into your life, और जो पाप आपके जीवन में राज्य कर रहा you है, are telling lies, आप झूठ बोलते हो, full of anger, क्रोध से भरे हुए, jealousy, आपके अंदर जलन है evil eyes, और बुरी दृष्टि, you cannot bear others, आप दूसरों को सहन नहीं कर सकते, and your thoughts are full of evil always, और आपके जो सोच विचार है वो बुराई से ही हमेशा भरे हैं, it shows that you are the servant of sin. ये दिखाता है कि आप पाप के दास हैं। It shows that sin is controlling your whole body, whole life. ये वो दिखाता है कि आपका जो शरीर है वो पाप के द्वारा नियंत्रण किया जाता You है। wanted to do good, but you cannot do. आप भला तो और अच्छा तो करना चाहते लेकिन आप कर नहीं पाते, Because sin is controlling you. क्योंकि वो पाप आपको नियंत्रण करता है। That's why one man of God said, I want to do good, but I cannot because the sin dwelleth in my body. इसलिए परमेश्वर का एक जन ऐसा कहता है कि मैं भला तो करना चाहता हूं, मैं अच्छा तो करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि वो पाप जो मेरे शरीर में वास करता है। Some of you may have come newly in this meeting, आप में से कई लोग नई रीति से यहाँ आए होंगे, and sin may be troubling you, और जो पाप है वो आपको तंग करता होगा, and day and night you may have no rest into your mind and heart, into your body also. रात और दिन आपके मन में, आपके हृदय में और आपके शरीर में भी विश्राम नहीं होगा। But at the same time there is a longing into your heart to come out, get the deliverance. लेकिन उसी समय आपके मन में ये एक आग्रह भी है कि आप उस पाप पे से निकलना चाहते हो, But you are unable to know, you are not aware about the way how to come out. लेकिन आप उस मार्ग को नहीं जानते और अनजान है कि उसमें से कैसे निकलना है। You want to come out, you have longing, you have desire to come out your sinful life because you are troubled by sin. क्योंकि आप उसके द्वारा सताए जाते हो, आप उस पाप के द्वारा तंग किए जाते हो, आपके अंदर ये आग्रह तो है, इच्छा तो है उसमें से निकलने के लिए। That's why you are seeking your own way, you are doing your own effort to come out from your sin, but you are unable to do that. इसलिए आप अपने ही आप से कई प्रयास करते हो और परिश्रम करते हो उस पाप में से निकलने के लिए, लेकिन आपसे वो हो नहीं पाता। You are like a person who is struggling in the miry clay. आप उस इंसान के समान है जो कीचड़ में फंसा हुआ है। Person who is struggling, standing in the miry clay and willing to come out, when he will lift his left leg, his right leg will go down. जो एक व्यक्ति जो कीचड़ में फंसा हुआ है और उसमें से निकलने का प्रयास कर रहा है, वो जब अपनी दाहिनी टांग को उठाता है तो उसका बायां पैर उसमें उस कीचड़ में दस जाता है। It go more deep. वो ऐसा करते हुए और भी गहराई में चले जाता है, Because there is no surface in that miry clay, so where he could put his feet. क्योंकि उस कीचड़ के बीच में ऐसा कोई भी स्थिर स्थान नहीं जिसके ऊपर वो अपना पैर रख सके। So it's person who lives in sin, his life is compared with the miry clay we see in the word of God. इसलिए वो इंसान जो पाप में रहता है उस इंसान के समान है जो उस कीचड़ के बीच में फंसा हुआ है, जो वचन कहता है। And we see that the psalmist said, God has brought me out from the miry clay and set my feet upon the rock. इसलिए संगीत लिखने वाला, भजन संहिता लिखने वाला ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उस दलदल की कीच से निकाल के मेरे पैरों को चट्टान पे स्थिर किया है। Let's read that verse please. दया करके उस वचन को पढ़ें। Psalm 40 भजन संहिता 40 verse 2. उसका दूसरा वचन। Psalm 40 verse 2. भजन संहिता 40 का 2 वचन। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। See, brother, sister, those who are listening me, those who are living in sin,
or to whom the sin is troubling, their life is compared with a mighty clay. प्यारे भाई और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, देखिए इस वचन के अनुसार जो लोग पाप में रहते हैं और जो जिनको पाप परेशान कर रहा है, वो उस कीचड़ के समान तुलना किए गए जिसमें लोग फंसे हैं। And that's why we see here, Psalmist said, rather King David said, इसलिए हम यहाँ इस जगह में देखते हैं कि संगीतकार जो दाऊद है वो ये कहता है, he said, that mean he went through such a situation, that's why he said, he brought me up also out of an horrible pit, out of the mighty clay. क्योंकि दाऊद भी एक ऐसे अनुभव से गया होगा, इसलिए वो इस रीति से लिखता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारा। And also said, set my feet upon a rock and established my going. और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So in the second place we see man is bound with sin. और दूसरा स्थान में हम देखते हैं कि मनुष्य पाप से बंधा हुआ है। But dear brother and sister, what we read here in verse 36, इस 36 वचन में प्यारे भाई और बहन हमने क्या पढ़ा? who can set us free from the bondage of sin? हमें पाप की इस बंधुआई से कौन छुड़ा सकता है? Verse 36 it is written, John 8:36. यूहन्ना 8 का 36 में ये लिखा है, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Who is the Son? ये पुत्र कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के पुत्र है। Son of God manifested in the body, in the flesh, so that he may destroy the works of devil. परमेश्वर का पुत्र देह में प्रकट हुआ ताकि वो पाप के कामों को नाश करे। The work of devil is a sin. वो जो शैतान की क्रिया पाप है, काम है, वो पाप है। Yes. So Jesus Christ, the Son of God, he was manifested in the flesh so that he may destroy the works of devil, Satan, which is called sin. इसलिए जो यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है, इस देह में प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को जो पाप है उसे नाश करे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So therefore, if you want to come out from your sinful life, believe on this Jesus who is called the Son of God. इसलिए यदि आप इस पाप में से बाहर आना चाहते हो तो आप इस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें जो आपको छुड़ा सकता है। If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So you must accept your sin before Lord Jesus Christ who died for your sins. इसलिए उस यीशु मसीह के सामने जो आपके लिए मर गया, आप अपने पापों का इकरार करें। Then Jesus Christ will set you free from your sin and also along with that from all your problems. तब यीशु मसीह आपको हर एक प्रकार के पाप से छुड़ाएगा और आपकी हर एक प्रकार की समस्याओं से भी आजाद करेगा। Number 3. तीसरा, Man is bound by world. तीसरा मनुष्य जो है संसार के साथ बंधा हुआ है। But world has bound man today we see. आज के दिन हम देखते हैं कि दुनिया ने या संसार ने मनुष्य को बांधा हुआ है। When we read Galatians chapter 1 जब हम गलातियों की किताब पहला अध्याय and verse 4 when we read उसका चौथा वचन जब पढ़ते हैं, Galatians 1:4. गलातियों 1 अध्याय का 4 वचन, Yes. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Yes, glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Brother and sister, here Apostle Paul said, the land or the country, the world in which we are living, it is called present evil world. यहाँ संत पौलुस इस रीति से कहता है कि जिस संसार में या दुनिया में या समाज में हम रहते हैं वो बुरा संसार है। From this present evil world, according to the will of God and our Father, who Jesus Christ gave himself for our sins that he may deliver us. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। What we see in this evil world? हम इस बुरे संसार में क्या देखते हैं? When we read 1 John chapter 2,
जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, 1 John chapter 2 and verse 16 when we read, जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, there we see the definition of this present evil world. वहां हम लोग इस बुरे संसार की परिभाषा को देखते हैं। There we can see the definition of this present evil world which we have read in Galatians 1:4. जो गलतियों 1 अध्याय के 4 वचन में हमें बुरे संसार के बारे में पढ़ा, यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन में उसकी परिभाषा को भी हम पढ़ते हैं। Yes, please read. दया करके पढ़ें। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So here we have read what is the world यहाँ हमने देखा कि संसार क्या है, or the evil world. या तो बुरा संसार। It is, we have read three things here. यहाँ हमने 3 बातों को पढ़ा। This word is blended or we see combined with three things. यहाँ ये जो संसार है वो 3 बातों के साथ जुड़ा है। Yes, lust of flesh, शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, and number 3, the pride of life. और जीवन का घमंड। Is not of the Father but is of the world. ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। Therefore, dear brother and sister, in this world we see 3 types of lust. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हम 3 प्रकार की अभिलाषाओं को So देखते हैं। to deliver us from this triune sin, we may call it triune sin also, lust of flesh, lust of eyes, and the pride of life. इसलिए इस त्रिएक पाप से हमें छुड़ाने के लिए, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, So this, to deliver us, our Lord Jesus Christ came into this world. इन सारी बातों से छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So man is bound with the 3 things. Number 1 is the Satan, second is sin, and the third is the word in which we have read, lust of triune sin, lust of flesh, which is working in our body to do evil works, and also the lust of eye, that always we are seeing evil things with our eyes, and also we giving room for the pride of life to become name and fame and prosperity into this world. इसलिए मनुष्य जो है ये 3 बातों से बंधा हुआ है। पहला शैतान के द्वारा, दूसरा पाप के द्वारा और तीसरा इस संसार के द्वारा। संसार के बीच में हम शरीर की अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा को और जीवन के घमंड को देखते हैं। अर्थात शरीर की अभिलाषा बोलने से हम पाप के कई कामों को करते हैं, और आंखों की अभिलाषा कई प्रकार की बुरी बातों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, और तीसरा जीवन का घमंड, हमारे जीवन में कई प्रकार के घमंड पाए जाते हैं। And we want to get name, fame, poverty and prosperity and into this world. और इस संसार के बीच में हमें नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, और बड़ा धन दौलत और समृद्धि पाना चाहते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। But in verse 17 it is written, 1 John 2:17. लेकिन पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन में इस रीति से लिखा है, पढ़िए। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। But the world and the lust of this world passeth away. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, But one who do the will of God will abide forever. लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Brother and sister, I have told you in the beginning that man is bound with the 3 things. भाइयों और बहनों, मैंने आरंभ में ही आपको ये बताया कि मनुष्य 3 बातों से बंधा हुआ है। One is Satan, second is sin, and the third is the word. पहला जो है वो शैतान के द्वारा, दूसरा पाप के द्वारा और तीसरा दुनिया या संसार के साथ। Now let us go further. लेकिन आइए हम आगे बढ़े। Now let us see what is the truth. अभी हम देखेंगे कि सच्चाई क्या है, Because Jesus said, "You shall know the truth, and truth shall make you free." क्योंकि यीशु ने यह कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। So what is the truth? वो सच्चाई क्या है? About truth also we can brief 3 ways. अभी इस सच्चाई के बारे में भी हम 3 भागों से देख सकते हैं। Truth can also be briefed 3 ways. ये जो सच्चाई है ये भी 3 बातों से संक्षिप्त रीति से हम देख सकते हैं। I will tell you from the word of God. मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा। Number 1 is Jesus. पहला ये यीशु है। Jesus is the truth. यीशु मसीह ही सत्य है। John the Gospel chapter 14 and verse 6 when we read, जब हम
यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं। What we read there, or rather what Jesus said, वहां हम क्या पढ़ते हैं? नहीं तो यीशु ने क्या कहा? I am the way, मैं मार्ग हूं, the truth, सत्य हूं and the life. और जीवन हूं। So there Jesus told, I am the truth. वहां यीशु ने यह कहा कि मैं सच्चाई या सत्य हूं। Jesus told three things about himself. यीशु मसीह ने अपने बारे में 3 बातें कही। I am the way, मैं मार्ग हूं, the truth, सत्य हूं and the life. और जीवन हूं। Without me, nobody can go to Father. और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। Read that verse. उस वचन को पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So, brother and sister, now I am going to tell you what is truth. अभी प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। Now, first, I have told you what are those things in which man is bound. पहले मैंने आपको ये बताया कि वो क्या बातें हैं जिसके द्वारा मनुष्य बांधा हुआ है। And now I am going to tell you what is the truth which can bring us out from this triune binding or slavery. अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वो सच्चाई क्या है जिसके द्वारा हम इस त्रिएक पाप से या बंधनों से छूट सकते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So the first place we saw Jesus is truth. और पहले स्थान में हमने देखा कि यीशु वो सच्चाई है। Jesus is truth. यीशु वो सच्चाई है। So when Jesus is truth, there is no another truth we can say. जब यीशु मसीह वो सत्य ये सच्चाई है तो उसके अलावा दूसरा कोई सच्चाई नहीं। When we say Jesus is the truth, how can we know or what is the proof for that? जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह वो सच्चाई है तो उसका प्रमाण क्या है? There are three reasons we can give for that. उसके लिए हम 3 कारणों को देते हैं। Number one, पहला, in him there was no sin. उसके अंदर उसके बीच में कोई पाप नहीं। He knew no sin. वो पाप को नहीं जानता He did no sin. और उसने कोई पाप नहीं किया। So the person who having these three qualities, living without sin, did no sin, don't have knowledge about sin. जो मनुष्य जिस मनुष्य में ये 3 गुण पाए जाते हैं, जिसने पाप नहीं किया, वो पाप को नहीं जानता और उसमें पाप नहीं। So that means he lives in truth. वो उसका अर्थ ये है कि वो सत्य में या सच्चाई में बना रहता है। He himself is the truth. वो खुद भी सत्य है। And these things we see about our Jesus, in Jesus. और ये 3 बातें हम यीशु मसीह में देखते हैं। In him there is no sin. उसमें पाप नहीं। His life was sinless. His birth was sinless. उसका जीवन पाप रहित था। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। He didn't know sin. उसने कोई पाप नहीं किया। As I told, is there anyone who can find sin in my life? और यीशु मसीह ने ये दावा किया कि कोई ऐसा है जो मुझ में पाप ढूंढ सकता है। There was no sin in Jesus. यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। And the third thing we see, he knew no sin. और तीसरा हम देखते हैं कि वो पाप को नहीं जानता था। Today we see people, they are crazy. They are anxious to know about sin. आज हम देखते हैं कि लोग पाप की जानकारी प्राप्त करने के लिए पागल हुए पड़े हैं। They are doing so many efforts, finding out so many ways to know about sin to please themselves. वो उस पाप को जानने के लिए और उस पाप को करने के लिए बहुत से मार्गों को अपनाते हैं और बहुत से प्रयास करते हैं। But about Jesus it is written, he knew no sin. लेकिन यीशु मसीह के बारे में यह लिखा है कि उसने पाप को नहीं जाना। That's why boldly we can say Jesus is the truth. इसलिए साहस के साथ, हिम्मत के साथ हम ये कह सकते हैं कि यीशु वो सच्चाई है। That's why Jesus said, "You shall know the truth, and truth shall make you free." इसलिए यीशु ने ये कहा कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। Second thing what we see, which is the truth. और उस सत्य के बारे में दूसरा बात हम क्या देखते हैं? Second point for truth is, what is that? उस सच्चाई के बारे में दूसरा विषय क्या है? Word of God. परमेश्वर का वचन। Word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। When we read John the Gospel chapter 17, जब हम यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ते हैं, read verse 17 please. उसका 17 वचन पढ़े। 17 John. यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। John chapter 17 and verse 17 we have read. In the second place, what is truth? यहाँ यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन में हम दूसरा विषय ये जानते हैं कि सत्य क्या है। It is written here, Jesus said, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." यहाँ ऐसा लिखा है और यीशु ये कहते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So brother and sister, the word of God, the Bible
it is the truth. इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये जो वचन है, ये बाइबल है, ये सत्य है। Whatever is written from the first book of the Bible to the last book of the Bible, from Genesis to Revelation, everything what is mentioned there, it is truth. इसलिए इस धर्म शास्त्र में जो कुछ लिखा है, पहली उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, सब कुछ जो लिखा है वो सब सत्य है। Good things are also mentioned and bad things are also mentioned. Good things also mentioned that you will do this, what reward you will get. The bad thing, if you will do this, what consequence you have to face. इस धर्म शास्त्र में अच्छी बातें भी लिखी है, बुरी बातें भी लिखी है, और ये भी लिखा है कि जब आप अच्छी बातों को करते हैं तो क्या प्रतिफल पाते हो, और जब आप बुराई करते हो तो उसका परिणाम क्या होता That's है। why it is called the truth. इसलिए सत्य है, We cannot hide the truth. आप इसको छुपा नहीं सकते। We cannot go far from the truth also. इस सच्चाई से आप दूर भी नहीं भाग सकते। Yes, Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free from all your binding, from all your burden, worries and cares." इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस सत्य को जानोगे और ये सत्य तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हें हर एक प्रकार के बंधन से, हर एक प्रकार की चिंताओं से और बोझों से छुड़ाएगा। And then the third place we see the truth is the Holy Spirit. और जब हम तीसरे विषय को देखते हैं कि ये सत्य जो है वो पवित्र आत्मा है। Holy Spirit is also a truth. पवित्र आत्मा भी एक सत्य है। John the Gospel chapter 16 verse 13. जब हम यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन को पढ़ते There हैं, we can see the Holy Spirit is called the truth. वहां देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी सत्य कहलाती है। Read that verse. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, जब सत्य का आत्मा आएगा, that means the Holy Spirit, उसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा He will guide you into all truth. वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। That's why in the epistle of John it is written, इसलिए इस यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में ये लिखा, epistles, यूहन्ना की पत्री में ये लिखा that you have no need that others should guide you. The unction or the anointing, the Holy Spirit which you have, it will guide you. तुम्हारे लिए ये अवश्य नहीं कि तुम्हें कोई दूसरा सिखाए, परंतु जो अभिषेक तुमने पाया है और जो पवित्र आत्मा तुम में है, वो सारी बातों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। And this is what Jesus also told, the same thing. इसलिए यीशु मसीह भी वहां यही कहते हैं, When He, that means the Holy Spirit, जब वो जो पवित्र आत्मा है, the truth of Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। Because Holy Spirit is the truth, it will guide us into all truth. क्योंकि पवित्र आत्मा भी सत्य है, इसलिए वो मैं पूरी सच्चाई में चलाएगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, first I told you that man is bound with three things. पहले मैंने आपको बताया कि मनुष्य 3 बातों से बंधा हुआ है, And the second place I have told you what is the truth. और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि सच्चाई क्या है। Now, let us see these three things which are compared with the truth, Jesus, Word of God and the Holy Spirit. अब हम ये देखेंगे, ये जो 3 बातें मैंने आपसे कही, जो यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ये किसके साथ तुलना किया गया। Now listen. ध्यान से सुनिए, These three truths, ये 3 सच्चाई, they are fighting against these three things which made us bound. ये 3 बातें, ये जो 3 सच्चाई मैंने आपको बताई है, ये उन 3 चीजों से जिसने आपको बांध के रखा है, लड़ाई या युद्ध करती है। These three things were fighting against these three binding which devil has brought into our lives. ये 3 बातें उस 3 बंधनों के साथ जो शैतान ने आपके जीवन में लाई है, उनके साथ युद्ध करती है। So first I have told you Satan पहले has मैंने आपको bound बताया, us. Satan has bound us. पहले मैंने आपको ये बताया कि शैतान ने हमें बांधा हुआ है। But who is delivering us from Satan? और शैतान से हमें कौन छुड़ाता है? This truth, who is Jesus? ये सच्चाई जो यीशु है। Where we read that? हम कहाँ पढ़ते हैं? Hebrews chapter 2 verse 14. इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन में। Hebrews 2:14. इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन। So see the first place, Satan, Jesus, who is the truth, he is fighting against Satan.
देखिए पहले स्थान में, Satan who has bound us. देखिए पहले स्थान में जो यीशु है, जो सत्य है, इस शैतान जो हमें बांध के रखता है उसके साथ युद्ध करते हैं। Please read that verse. दया करके उस वचन को Hebrews पढ़ें। 2:14. इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So what we read here, हमने यहाँ क्या पढ़ा? we have read about Jesus Christ. हमने यहाँ यीशु मसीह के बारे में पढ़ा। Children, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, he also himself likewise took part of the same. वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। Who came into the flesh and blood? जो कौन मांस और लहू में आया? Jesus Christ. यीशु मसीह। That's why it is written, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. इसलिए यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा कि वो आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे वह मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करे। So see now, Jesus Christ through the truth and the Satan who has bound us, Jesus is giving us victory over Satan. इसलिए यहाँ देखिए कि यीशु मसीह जो सच्चाई है, यो शैतान जिसने हमें पाप बंधन से बांध के रखा है, यीशु उसके साथ युद्ध करके हमें छुड़ाता है। Hallelujah. That's why we must know this truth who Jesus. इसलिए हमें इस सत्य को जानना होगा जो यीशु है। And you must accept this truth into your life who Jesus to set you free from Satan. इसलिए इस यीशु मसीह को आपके जीवन में आपको ग्रहण करना होगा, ताकि वो आपको उस शैतान के बंधन से छुड़ाए। Now let us see the sin who has bound us, who is fighting against this sin to इसलिए set us free. अब हम इस पाप के बारे में देखेंगे जिसने हमें बांध के रखा है, और उस पाप से हमें कौन छुड़ाता है? Word of God. परमेश्वर का वचन। Psalm 119. भजन संहिता 119 Read verse 11. उसका 11 वचन पढ़े। Yes. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Psalm 119 and verse 11, what we read. भजन संहिता 119 का 11 वचन में हमने क्या पढ़ा? Psalmist said, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. संगीतकार ये कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Now the sin which is troubling us and put us into the slavery. अब जो पाप हमें सताता है और हमें बंधुआई में डालता है, Who can set us free from this sin? उस पाप से हमें कौन छुड़ा सकता है? We have read here the word of God. हमने इस जगह में पढ़ा कि वो परमेश्वर का वचन है। How the word of God will set us free from this sin? कैसा ये प्रभु का वचन हमें इस पाप से छुड़ाता है? When we will keep the word of God into our hearts. जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में रखेंगे। Keeping the word of God into our hearts mean always remembering the word of God. अपने परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में, अपने हृदयों में रखने का अर्थ है कि हमेशा उसको स्मरण करते रहना। Now you are listening the word of God. अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। And the word of God is coming into your heart. अभी Word of God is coming into your heart. परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आ रहा है। So you must accept the word of God into your heart. इसलिए आपके हृदयों में आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। When you will keep the word of God into your heart, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में रखोगे, then the sin cannot remain there. तब पाप वहां नहीं रह सकता, Because the word of God is full of power. क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ से परिपूर्ण है। Word of God is called the two-edged sword. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार कहलाता है। Word of God having such power and grace which could give you power and strength to overcome the sin which is ruling into our lives. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ और अनुग्रह है जिसके द्वारा आप बल प्राप्त करते हैं और इस पाप के विरुद्ध में आप युद्ध करते हो, संघर्ष करते हो। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Now to see the third place, the Holy Spirit with the truth, how it fight against the world. अभी हम तीसरा स्थान में जो पवित्र आत्मा सत्य है किसके साथ युद्ध करती है? Word, संसार के साथ युद्ध करता है। Because Satan world has made us a slave.
क्योंकि शैतान ने इस संसार के द्वारा हमें दास बना दिया We है। are bound by world. हम इस दुनिया के द्वारा बांधे गए हैं, But the Holy Spirit is setting us free from this world. लेकिन पवित्र आत्मा इस संसार से हमें छुड़ाती है। Where we read that? हम कहाँ पढ़ते हैं? Romans chapter 8 and verse 13. रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन। Romans 8:13. रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन। Let's see how the Holy Spirit help us to get rid from the worldliness, from the world. हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमें इस दुनिया से और दुनियादारी से छूटने के लिए सहायता करती है। Romans 8:13. Read. रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन पढ़े। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now I will explain you. You may think world is not mentioned there. अभी आप ये सोचेंगे कि वहां संसार तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। Yes, I will explain you. It is there. मैं वही इसी वचन से आपको ये बताऊंगा। It is there. वही लिखा है, उसमें है बाबू। उस वचन में है। If ye live after the flesh, ye shall die. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। Now look at me. I will explain you how the world is there. अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि वहां संसार कहाँ है। You know, I have already told you 1 John chapter 2 and verse 16. मैंने पहले ही आपको पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन में बता दिया। In the world, the lust of flesh, संसार में जो शरीर की अभिलाषा, lust of eyes. आंखों की अभिलाषा, So what we see in the body? और इस जगह में हम क्या देखते हैं? What we see in the body? हम शरीर में क्या देखते हैं? Flesh is there, वहां मांस है, and also we see the eye is there. वहां हम आंखों को देखते हैं। Every member in the body we see there. हम शरीर में सारे अंगों को देखते हैं। Here, what the word of God says? यहाँ वचन क्या कहता है? If you mortify the deeds of your body through the Holy Spirit, ye shall live. और यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। Jesus said, the word of God says about Jesus, God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believeth upon him should not perish but have everlasting life. God so loved the world. He did not love the world mean the buildings of this world, mountains of this world, trees of this world, customs of this world. But when Bible says God so loved the world, that means he loved you and me. जब परमेश्वर का वचन प्रभु के बारे में यह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र उसके लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन को पाए, तो परमेश्वर ने पूरे संसार को प्रेम किया। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर संसार में यहाँ की इमारतों को या बिल्डिंग्स को प्रेम नहीं करता, परमेश्वर जगत से प्रेम करता। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम किया। God so loved the world mean he loved the humanity, he loved the human being. परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करने का अर्थ यह है कि वो मानव जाति को और मनुष्य को प्रेम करता है। What we see in the world, what we see in man, इस संसार के बीच में और मनुष्य में हम क्या देखते हैं? man is filled with the lust of flesh. ये मनुष्य जो है शरीर की अभिलाषाओं से भरा है। Man is filled with the lust of eyes. ये मनुष्य है आंखों की अभिलाषा से भरा है। Man is filled with the spirit of pride. वो जो मनुष्य है वो घमंड की आत्मा से भरा है। That is the world. वो संसार ही है। Here we have read Romans chapter 8 and verse 13. If we multiply the deeds of this triune sin by the power of the Holy Spirit, through the Holy Spirit we shall live. लेकिन रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन में मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम शरीर की क्रियाओं को, शरीर के पाप, सारे प्रकार के पापों को आत्मा के द्वारा मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So I have clearly shown you and explained you how the truth, which is Jesus, Word of God, and the Holy Spirit, works against Satan, sin, and the world. मैंने आपको स्पष्ट रीति से ये बता दिया और दिखाया है कि कैसे जो सत्य, जो यीशु है, जो परमेश्वर का वचन है और जो प्रभु की पवित्र आत्मा है, ये कैसे शैतान के 3 बंधनों से, जो पहला शैतान है, दूसरा पाप है और तीसरा संसार है, कैसे युद्ध करते हैं। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So victory certainly sure. Victory belongs to us. इसलिए निश्चय जय हमारी होगी। Satan cannot rule in our lives. शैतान हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकता। He cannot keep us in his grip. वो हमें उसकी जकड़ में नहीं रख सकता। Already we have read Hebrews 2:14. He destroyed the devil which has the power of death.
हमने पहले ही इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन में पढ़ लिया कि यीशु मसीह ने उस शैतान को जिसके पास मृत्यु का अधिकार था नाश किया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, we have no need to fear at all. इसलिए हमें किसी भी तरह बात से डरना नहीं। But still, there are certain things from which this truth, who Jesus wants to set us free, and those things I would like to tell you. इसलिए उसके बावजूद भी कई ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जिससे यीशु मसीह जो सत्य है हमें छुड़ाना चाहता है, वचन से मैं आपको बताऊंगा। Still, we are bound certain things apart from these three things: Satan, sin, and world. There are still certain things which I would like to tell you from the Word of God from 7 different angles. इन 3 बातों को छोड़ के जो कि शैतान है, पाप है, संसार है, इन 3 बातों को छोड़ के और भी कई अन्य बातों से हम जकड़े हुए हैं, जो मैं आपको प्रभु के वचन से 7 प्रकार के दिशाओं से आपको बताऊंगा। There are 7 things still we are bound in them. अभी भी 7 ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम बंधे हुए हैं। Apart from these 3 things. इन 3 बातों से और अलग। Apart from Satan, sin, and world. पाप, संसार, पाप और दुनिया को छोड़ के और भी 7 बातें हैं। But now let us see what are those things from which this truth, who is Jesus, will set us free. अभी हम उन बातों को देखेंगे कि जो यीशु जो सत्य है हमें कैसे छुड़ाता है। This is the third point. ये तीसरा विषय है। First we saw the first thing, who has made us bound. पहला विषय पहला भाग हमने ये देखा कि किसने हमें बांधा हुआ है। And we saw 3 things. उसमें हमने 3 बातों को देखा। Second we saw the truth. What is the truth? दूसरा भाग हमने सच्चाई के बारे में देखा कि सच्चाई क्या है। And there also we saw from 3 different angles. और उसमें भी हमने 3 बातों को वहां देखा। Now in the third place, the third point, अभी हम तीसरा भाग, what are those things from which this truth, who Jesus, will set us free. वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे यीशु मसीह जो सत्य है हमें छुड़ाएगा। And all these things which I'm going to tell you, it is in this world only in which we are living and we are seeing, and some of us also having in them. और जो बातें मैं आपको अभी वचन से बताऊंगा वो केवल इस संसार के बीच में ही है और कई लोगों के जीवन में भी वो पाई जाती है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। But let's be grateful to our God the Father, who sent His Son Jesus Christ to set us free from these 7 things which we are going to meditate now. और हम परमेश्वर पिता परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को जो सत्य है इस संसार में भेजा ताकि वो हमें इन 7 बातों से छुड़ाए। Number 1, पहला विषय curse. श्राप से। Curse. Yes. श्राप से। Let's read Galatians chapter 3. पढ़िए गलतियों 3 अध्याय Read verse 13. उसका 13 वचन। This is the first place we see from which Jesus, who is the truth, wants to set us free. ये पहला विषय है जहां यीशु जो सत्य है हमें छुड़ाना चाहता है। Galatians 3:13. गलतियों 3 अध्याय verse 10 also. गलतियों 3 अध्याय का 13 वचन, साथ में उसका 10 वचन भी पढ़े। Yes. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Yes. जो Verse 10. सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So brothers and sisters, the law cannot make us perfect. इसलिए प्यारे परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, ये जो व्यवस्था है हमें सिद्ध नहीं कर सकती, Because no one can fulfill the condition of the law. क्योंकि कोई भी इस जो व्यवस्था की शर्तें हैं उसे पूरा नहीं कर सकता। He can fulfill 1, 2, and 3 at the most, but he cannot fulfill all the condition of the law. आप ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 शर्तों को पूरा कर सकते, लेकिन इस नियम के व्यवस्था के सारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकते। So the word of God says here in verse 10 we have read, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. इसलिए हमने गलतियों 3 अध्याय का 10 वचन में इस रीति से पढ़ा कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। For the lack of time, I would like to tell you
those things which bring curse in our lives. समय की कमी के कारण मैं आपको केवल वो बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन में श्राप को लाती है। But keep in your mind, Jesus Christ became curse for us so that he may deliver us from curse. लेकिन हमें इस बात को अपने मन में रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि हमें उस श्राप में से बाहर निकाले। Now quickly we will read those things which brings curse in our lives. जल्दी उन बातों को हम पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में श्राप को लाते हैं। Deuteronomy chapter 27. व्यवस्थे विवरण 27 अध्याय। Deuteronomy chapter 27 verses 17 to 19. When we read certain thing. If we will do that, it will bring curse in us. व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 27 वचन से हम 29 वचन तक पढ़ेंगे उन बातों को जो हमारे जीवन में श्राप को लाती है। Deuteronomy chapter 27 verses 17 to 19. व्यवस्था विवरण 27 अध्याय का 17 से 19 वचन। श्रापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवाने को हटाए, तब सब लोग कहे आमीन। श्रापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहे आमीन। श्रापित हो वह जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहे आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Brother and sister, we have read in verses 3 verses, what are those things which bring curse in us? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमने इस 3 वचनों में ये पढ़ा कि जो हमारे जीवन में श्राप को लाती है। Cursed be he that removeth his neighbor's landmark. श्रापित है वो मनुष्य जो अपने पड़ोसी के सिवाने को हटाता है। That means enlarge his landmarks. वो अपनी जगह को बढ़ाने के लिए He is not supposed to take the landmark of others, but he is grabbing in. It brings curse in their life. वो दूसरों की जगह को हड़पना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने के लिए ऐसा करता है। And also cursed be that maketh the blind to wander out of the way. और शापित है वो जो अंधे को मार्ग से भटका देते। Blind is already blind, he does not know where to go, but if he still put him to the wrong path, it brings curse to us. एक अंधा व्यक्ति है जो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा करता है और उसे मार्ग से भटका देता है तो वचन कहते हैं वो शापित है। But brother and sister, when we read verses 20 to 23, the same chapter you can read by yourself. व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 27 अध्याय का 20 से 23 वचन जब हम पढ़ते अपने आप पढ़ लेंगे, There we read about the immoral life. वहां हम लोग एक अनैतिक जीवन को पढ़ते हैं, Sinful life. वहां पाप से भरा हुआ जीवन। So if the person having immoral life, remember it will bring curse in some. अगर एक इंसान के जीवन में एक अनैतिक जीवन पाया जाता है, वो अनैतिक जीवन उसके अंदर श्राप को लाता है। Verses 20 to 23, the same chapter, it is written immoral life. 20 से 23 वचन में वहां अनैतिक जीवन के बारे में लिखा है। I will read only one verse. मैं वहां केवल एक वचन पढ़ूंगा, Remaining you can read by yourself when you go home. बाकी के वचन जब आप घर जाएंगे तो अपने से आप पढ़ लीजिए। Verse 20. 20 वचन। Cursed be he that lieth with his father's wife, because he uncovereth his father's skirt, and all the people shall say Amen. शापित है वो जो अपनी सौतेली माँ के साथ कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उड़ाता है, तब सब लोग कहे आमीन। And if you will read up to 23, all such things are mentioned there different ways. आप 23 वचन तक जब आप पढ़ते हैं तो ये सारी बातें अलग अलग रीति से लिखी है। So it speaks about the sin which connected with our flesh. ये जो सारी बातें हैं इस बात को दर्शाते हैं वो पाप के बारे में जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं। The immoral sin. ये जो अनैतिक पाप है, Yes, immoral life. एक अनैतिक जीवन। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। It brings curse in our lives. ये सारी बातें हमारे अंदर श्राप लाती है। Again when we read verses to same chapter verses 24 to 26. उसी अध्याय के 24 से 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, Read quickly please read. श्रापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे, तब सब लोग कहे आमीन। श्रापित हो वो जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले, तो सब लोग कहे आमीन। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहे आमीन। Yes, cursed be verse 25. Cursed be he that taketh reward
to slay the innocent. 25 वचन, शापित है वो जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए दंड ले। Today we see this sin is increasing like anything in this world. आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि इस प्रकार का पाप बढ़ते जा रहा है। And such people cannot escape from curse of God. ऐसे लोग परमेश्वर के श्राप से छुप नहीं सकते। But we should be grateful to Jesus who became curse for us so that he may deliver us from such curses. इसलिए हमें परमेश्वर का शुक्रगुजार होना है क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और हमारे लिए श्राप बनके हमें उस श्राप से निकाला। Number 2. दूसरा, Jesus Christ through the truth, he will set us free from death. यीशु मसीह जो सत्य है हमें दूसरा मृत्यु से छुड़ाएगा। Because we are bound with the curse. Number 1, we are bound with the curse. पहला विषय, हम इस पाप से बंधे हुए हैं। And the second place, we are bound with death. दूसरा, हम इस मृत्यु के द्वारा बंधे गए हैं। Death also has bound us. उस मृत्यु ने भी हमें बांधा हुआ है। Let us read that verse, please. दया करके उसको वचन को पढ़ेंगे। Hebrews 2:15. इब्रानियों 2 अध्याय का 15 वचन। Hebrews chapter 2 verse 15. इब्रानियों 2 अध्याय का 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Dear brother and sister, परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, we are bound to death also. इस मृत्यु के द्वारा भी हम बंधे हुए हैं। Death has made us, kept us in our captivity. इस मृत्यु ने हमें उसके दासत्व में बांधा हुआ है। Therefore, the word of God says in 1 Corinthians chapter 15 and verse 26, the last enemy must be destroyed, which is the death. Death is the last enemy and it must be destroyed. इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 वचन ये कहता है कि सबसे अंतिम शत्रु या बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। 1 Corinthians 15:26 it is written, the last enemy that shall be destroyed is death. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 वचन ये कहता है कि सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। Who had destroyed this death? वो किसने इस मृत्यु को नाश किया? When we read in the same chapter, उसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, when we read verse 54, जब हम 54 वचन को पढ़ते हैं, the last portion of that verse 54, उस वचन का आखिरी भाग, death is swallowed up in victory. जय ने मृत्यु को निगल लिया। Death is swallowed up in victory. जय ने मृत्यु को निगल लिया। What is this victory? ये जय क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Where we read that? हम यहाँ ये कहाँ पढ़ते हैं? Verse 57. 57 वचन में। But thanks be to God which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Hallelujah. You have no need to fear from death. You are no anymore under the captivity or the clutches of death. इसलिए हमें इस मृत्यु को देख के डरना नहीं चाहिए। अब हम और इस मृत्यु के दासत्व में या बंधन में नहीं हैं। But we should only fear from that thing which bring death in us. लेकिन हमें उन बातों से डरना है जो हमारे अंदर इस मृत्यु को लाते हैं। Who bring death in us? क्या कौन हमारे अंदर मृत्यु को लाता है? When we read Romans 6:23, it is written, the wages of sin is death. इसलिए रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। Wages of sin is death, but thanks be to God who gives us eternal life through his son Jesus Christ. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर जीवन को देता है। We should fear from sin. We should not fear from death. हमें पाप से डरना चाहिए लेकिन हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। Because sin only brings death into our lives. क्योंकि पाप ही हमारे अंदर मृत्यु लाती है। Oh death, where is thy sting? Oh death, where is thy sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? Oh grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी जय कहाँ? Verse 56, 1 Corinthians 15:56. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 56 वचन। The sting of death is sin. मृत्यु का डंक पाप है। So it is written, the sting of death is sin.
यहाँ लिखा है कि मृत्यु का दंड पाप है and the strength of sin is the law. और पाप का बल व्यवस्था है, But who gives us the victory? लेकिन हमें कौन जय देता है? We have read death is swallowed up in victory. हमने ये पढ़ा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। But thanks be to God, verse 57, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. और 57 वचन परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। Now death should not make us afraid. इसलिए ये मृत्यु हमें भयभीत नहीं करना चाहिए, Rather death should afraid of us. और वरन ये मृत्यु हमसे डरना चाहिए। Oh, death should afraid of us. We should not afraid of death. हम मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, वरन ये मृत्यु हमसे डरना चाहिए। Why? What is the reason? उसका कारण क्या है? Because we got the victory through our Lord Savior Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने इस जय को पाया है। His victory is our victory. उसकी जय हमारी जय है। That's why we have no need to fear at all from death. इसलिए इस मृत्यु से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। No more, we are no more bound in death. इस मृत्यु के द्वारा हमें और बंधे नहीं है। We are freed from death. इस मृत्यु से हम छुड़ाए गए Jesus हैं। has made us free from death. यीशु मसीह ने हमें इस मृत्यु से छुड़ा दिया है। Hallelujah. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us see the third bondage. अभी हम तीसरा विषय देखेंगे। We see here when we read 1 John chapter 3, जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय verse 8. उसका 8 वचन पढ़ते हैं। Read 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन। Yes. जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। As already I've told you that Satan also has bound us. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि शैतान ने हमें बांधा हुआ है। We are bound by Satan. हम लोग शैतान के द्वारा बंधे गए हैं। But what we read here in 1 John 3:8. अभी हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन में क्या पढ़ा? For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. इसी कारण से परमेश्वर का पुत्र प्रकट किया गया ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे। Do you want to know what are the works of the devil? क्या आप जानना चाहते हो कि शैतान के काम क्या है? There are so many works of the devil, but I will tell you one. शैतान के बहुत से काम है, लेकिन मैं आज आपको एक बताऊंगा। 1 and 2 I will tell you from the word of God. प्रभु के वचन से आपको एक या दो कामों के बारे में बताऊंगा। John chapter 8, यूहन्ना 8 अध्याय verse 44. 44 वचन। 8:44, there we see the works of the devil. यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन में हम शैतान के कामों को देखते हैं। Read that. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Here we have read two things which reveals the works of devil. यहाँ हमने दो बातें पढ़ी जिससे हमें ये पता चलता है कि शैतान के काम क्या है। One, it is written, he is full of lust. पहला, वो अभिलाषा से भरा हुआ है। Second thing we see, he is a murderer. दूसरा, वो हत्यारा है। And the third thing we see, it is told he is the father of lies. और तीसरा ये है कि वो झूठ का पिता है। He is a liar. वो झूठा है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। These are the works of the devil. ये सारे शैतान के काम है। But Jesus Christ was manifested so that he may destroy the works of the devil. लेकिन यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, when we read again John chapter 5, जब हम वापिस यूहन्ना 5 अध्याय, John the Gospel chapter 5 and verse 5 when we read, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, please read the verse. दया करके उस वचन को पढ़ें। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। We see there was a man who was lying there with the spirit of infirmity 38 years. यहाँ हम एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जो 38 साल से एक दुर्बलता की आत्मा के द्वारा जकड़ा हुआ था। And Jesus healed him. और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। Jesus went to him and asked him, "Do you want to be whole?" जब यीशु मसीह उसके पास जाके उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता He है? said, "Lord, there is no one to help me." उसने ये कहा कि परमेश्वर मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं। But what Jesus said, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? verse 8, वो 8 वचन पढ़े। Jesus said unto him, "Rise, take up thy bed and walk." यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 38 years he was sick. From 38 years he was sick. 38 साल से वो बीमार था। Can such man take his bed and walk? क्या ऐसा मनुष्य अपनी खाट को उठा के चल सकता है? Never got up.
कभी भी नहीं उठा but he needed others to be get up. और उठने के लिए He उसे needed help of others to make him stand. उठने के लिए उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता है। But see, there is a power in the words of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के वचनों में वो सामर्थ को देखिए। Jesus said, "Take the bed and walk." यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल। And in verse 9 it is written, 9 वचन में ये लिखा है, and immediately the man was made whole and took up his bed and walked. वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। Now see the same chapter, verse 14. अभी उसी अध्याय के 14 वचन में देखिए, Read verse 14. 14 वचन पढ़े। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। After some days, this man met Jesus in the temple. कुछ दिनों के बाद ये मनुष्य यीशु मसीह के साथ मंदिर में मुलाकात की। By seeing him, Jesus told him, यीशु मसीह इसको देखने के बाद क्या कहते हैं? "Sin no more, तू और पाप नहीं करना, lest a worse thing come unto thee." ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। Here we see the work of devil. यहाँ हम शैतान के काम को देखते हैं। What is that? वो क्या है? Sickness. बीमारी। Sickness is the work of devil. बीमारी भी शैतान का काम है। Telling lies is the work of devil. झूठ बोलना भी शैतान का काम है। Living a lustful life is the works of devil. एक अभिलाषा से भरा हुआ जीवन जीना भी शैतान का काम है। Murdering spirit is the works of devil. संसार की आत्मा भी एक शैतान का काम है। Telling lies and keeping evil eyes and having bitterness, anger, jealousy, all are the works of devil. झूठ बोलना, बुरी दृष्टि रखना, दूसरों के प्रति क्रोध को रखना, जलन को रखना, बदले की भावना को रखना, ये सारे शैतान के काम है। But our Lord Jesus Christ, He was manifested to destroy all the works of devil. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो सारे शैतान के कामों को नाश करे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, now you can live a freed life from the works of devil. आप अब भी शैतान के सारे कामों से एक आजादी का जीवन बिता सकते हैं। How it could possible? वो कैसे मुमकिन है? It could only possible when you will walk with Jesus after that. वो तभी मुमकिन है जब उसके बाद आप यीशु मसीह के साथ चलोगे। When you repent from your sins, जब आप अपने पाप से मन फिराते हैं, you get the new life. आप तब नया जीवन पाते हो। Jesus gives you the new life. यीशु आपको नया जीवन देते हैं। And after that, when you take water baptism, जब उसके बाद आप पानी का बपतिस्मा लेते हो, you started to walk in the newness of life. तब आप अपने जीवन के नवीनीकरण में चलते हो। After that, when you are baptized in the Holy Spirit, उसके बाद जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हो, you come more closer to the Lord and walk with Him in His presence by getting the victory over all your sins तब or आप from the works of devil. तब आप और भी परमेश्वर के निकट आते हो और उसके साथ चलते फिरते हुए आप इन सारे शैतान के कामों के ऊपर, उन सारे पापों के ऊपर जय पाते हो। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So therefore now works of devil should not have dominion over us. इसलिए इन दिनों में शैतान के काम हमारे ऊपर राज्य नहीं करने चाहिए। Already Jesus has set us free. परमेश्वर ने हमें पहले से ही आजाद कर दिया है। Jesus has already set us free. यीशु मसीह ने पहले से ही हमें छुड़ा लिया है। Number 4. चौथा, Jesus Christ, through the truth, He will set us free from sin. यीशु मसीह जो सच्चाई है वो हमें पाप से आजाद करेगा। This is what we have already read John chapter 8, यही बात हमने यूहन्ना 8 अध्याय में पढ़ी है, verse 36. उसका 36 वचन। If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. अगर पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम निश्चय आजाद होंगे। Have you ever sinned? क्या आपने पाप किया है? Have you ever sinned? कभी? क्या आपने कभी पाप किया है? No one can say I have never committed sin. कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। Everyone who is born into this world is born as a sinner. Say the word of God. जो कोई भी संसार में जन्म लेता है, वचन ये कहता है कि वो पाप में जन्म लेता है। He is born in sin and he is a sinner. वो पाप में जन्म लेता है, वो पापी है। But Jesus Christ only can set us free from sin. लेकिन केवल यीशु मसीह ही हमें इस पाप से छुड़ा सकते हैं। The reason is because in Him there is no sin. क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं। Not only that, उतना ही नहीं, He took our sins upon His body on the cross. और उसने हमारे सारे पापों को अपनी देह के ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर चढ़ गए। That's why only He has the right to set us free from इसलिए sin. केवल उसी के पास ये अधिकार है कि वो हमें पाप से छुड़ाए। How He can forgive you? वो कैसे आपको क्षमा
कर सकते हैं when you will accept your sin before Him. जब उसके सामने आप अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं। 1 John chapter 1 and verse 9 we can see there. पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन में हम ये बात को देखते हैं। If you will confess our sin before Him, अगर हम अपने पापों को उसके सामने इकरार करेंगे, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all our sins. वो धर्मी और विश्वास योग्य है, वो अपने पापों हमारे पापों को अपने लहू से धोएगा। Dear brothers and sisters, if you want to get rid from your sins, प्यारे परमेश्वर के भाइयों और बहनों, यदि आप अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, accept your sin before Jesus. यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लो। Say, Lord Jesus, I am a sinner. ऐसा कहे कि यीशु मैं पापी हूँ, Lord, forgive my sins. परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। Knowingly and unknowingly the sins which I have done, Lord, against you, forgive me, Lord. जाने और अनजाने में जो पाप मैंने किए हैं परमेश्वर, सारे पापों को तू माफ कर। So when we will accept with a sincere heart, जब हम पूरे सच्चे हृदय के साथ इन बातों को मान लेंगे, Jesus will be faithful to forgive us. यीशु मसीह विश्वास योग्य है, वो हमें क्षमा करेगा। He will cleanse us with His precious blood. वो अपने बहुमूल्य लहू से हमें धोएगा। And after that we will no more be called sinner. उसके बाद हम कभी भी पापी नहीं कहलाएंगे। Neither Jesus will remember our sins. ना ही यीशु हमारे पापों को स्मरण करेगा। This is what the word of God says. यही प्रभु का वचन कहता है। So you must accept Jesus in order to get rid from your sin. इसलिए अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। You have no need to pay the money to get the forgiveness of your sin, but only you have to admit and give your heart to Jesus. अपने पापों की क्षमा पाने के लिए आपको कोई दाम चुकाना नहीं होगा, केवल आपको यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानना होगा। You have to accept before the Lord and forsake your sins. उन सारे पापों को यीशु के सामने मानते हुए उन सारे पापों को छोड़ देना है। Number 5. पांचवा विषय, Man is bound with his self-will. एक मनुष्य अपनी खुदी से बंधा हुआ है। Man is bound with his self-will, say the word of God. वचन ये कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ से खुदी से बंधा हुआ है। And from that also Jesus Christ want to set us free. और उससे भी प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाना चाहते हैं। Romans chapter 7, रोमियो 7 अध्याय verses 17 and 18. 17 और 18 वचन। Romans chapter 7, let's read verses 17 and 18. Romeo There we see man is controlled by his रोमियो self-will. रोमियो 7 अध्याय का 17 और 18 वचन में हम वहां देखते हैं कि मनुष्य कैसा अपनी खुदी से या स्वार्थ के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। And this was the confession of a great man of God. और ये जो परमेश्वर का एक महान जन था, उसका इकरार या उसका स्वीकार है। Yes, read that verse. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So he said, the sin that dwelleth in me. वो कहता है कि जो पाप मुझ में वास करता है, I want to do good, मैं भला तो करना चाहता but हूँ, that I cannot. लेकिन मैं नहीं कर पाता। It is no more I, but the sin that dwelleth in me. वरन पाप है जो मुझ में वास करता है। But he was a servant of God. लेकिन वो परमेश्वर का दास है। What was the sin about which he told here that it dwells in my body? वो क्या पाप है जो जिसके बारे में वो इस जगह में लिखता है कि वो मेरे अंदर वास करता है? That speaks about the sin of self. वो वहां अपनी खुदी के पाप को कहता है। That is called in other words, we can say the sin of disobedience, Adamic sin. दूसरे शब्दों में उस पाप को हम अनाज्ञाकारी का पाप कह सकते हैं। So, brothers and sisters, sin will never die, but we have to die for sin. पाप तो कभी नहीं मरेगा, लेकिन प्यारे परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, हमें पाप के लिए मरना होगा। Our will, self will not die, but we have to reckon this way that I am dead to my self will. हमारी खुद की खुदी या स्वार्थ तो कभी नहीं मरेगा, लेकिन हमें ये खुद को गिनना होगा कि हम उस पाप के लिए या खुदी के लिए मर चुके हैं। When we read Galatians chapter 2 verse 20, कहाँ हम पढ़ते हैं? गलतियों 2 अध्याय का 25 वचन, 20 वचन। 20, what did Saint Paul said? वहां संत पौलुस क्या कहते हैं? He said, I am crucified with Jesus. मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। Chapter 2 verse 20, दूसरा अध्याय का 20 वचन, Galatians 2:20, गलतियों 2 अध्याय का 20 I वचन। am crucified with Christ. मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Brother, sister, this self-will which is controlling us, we want to do good,
We want to do the will of God. We want to walk on the path of God, but our self-will is hindering us. प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो खुदी हम में पाई जाती है, इस खुदी के चलते हुए हम भला तो करना चाहते हैं, हम प्रभु के मार्ग में तो चलना चाहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम नियंत्रण किए जाते हैं, इसलिए ऐसा कर नहीं पाते। But when we read Romans 6:1, लेकिन जब हम रोमियो 6 अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं, what Saint Paul said, संत पौलुस वहां क्या कहते हैं? but what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? Verse 2, दूसरा वचन, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उससे कैसे जीवन बिताएं? To get rid from our self-will, we must understand this experience comes to our lives at the time of water baptism. यीशु खुद की खुदी से छुटकारा पाने के लिए पानी के बपतिस्मा के समय में हमारे अंदर ये आज्ञाकारी आनी चाहिए। That means we are dead to this sin, dead to our self-will. उसका अर्थ ये है कि हम इस पाप के लिए अर्थात अपनी खुदी के लिए मर चुके हैं। And from that moment we started to live a new life. और उस समय से हम एक नया जीवन बिताना आरंभ करते We हैं। live the newness of life. तब हम उस जीवन के नएपन में चलते हैं। So if we want to get rid from the self-will, अगर आप अपनी खुदी से छुटकारा पाना चाहते हो, what should we do? हमें क्या करना है? First thing, we should always remember the death and burial of our Lord Jesus Christ. सबसे पहली बात, हमें हमेशा ये स्मरण रखना होगा यीशु मसीह का मृत्यु और उसके गाड़ा जाना। His death and burial and also his resurrection from the dead. यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और उसके बाद मृत्यु में से जी उठना, इन बातों को स्मरण रखना। Jesus died for our sins यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, and he was buried, वो गाड़े गए, and to give us victory over our self-will, और उस खुदी के ऊपर हमें जय देने के लिए he raised from the dead, और उस मृत्यु में से वो जी उठे, so that we may get the resurrection power of the Holy Spirit to overcome our self-will. ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस पुनरुत्थान की शक्ति को पाए, जिसके द्वारा हम अपनी खुदी के ऊपर जय पा सकें। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Number 6. छठा विषय, As I already told you, जैसे मैंने पहले आपको बोला, man is bound with world, ये जो मनुष्य है संसार से बंधा हुआ है, but Jesus want to set us free from this world also. लेकिन यीशु मसीह हमें इस संसार से भी छुड़ाना चाहते हैं। Galatians 1:4. गलतियों 1 अध्याय का 4 वचन, Yes. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। It is the will of God that we should be delivered from this present evil world. We have read. ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम इस बुरे संसार से छूट जाएं। So what it shows, ये क्या दिखाता है? delivered from this present evil world, what it shows? इस वर्तमान के बुरे समय से छुड़ाए जाने का अर्थ क्या है या क्या दर्शाता है? That means we should live a overcoming life. उसका अर्थ ये है कि हम एक जय जीवन को जीना चाहिए। World should not rule in our lives. ये जो संसार है हमारे जीवन में राज्य नहीं करना चाहिए। Church is living in the world. ये जो कलीसिया है संसार में है, But the worldliness should not come in the church. लेकिन ये जो संसारिकता है ये कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। The world of sin, triune sin, should not come in the church. ये जो संसार के त्रिएक पाप है कलीसिया में प्रवेश नहीं करने चाहिए। Lust of flesh, lust of eye, the pride of life should not be seen in the church since we are living in this world. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये संसारिक पाप इस कलीसिया के अंदर नहीं दिखाई देना चाहिए। How it could possible to get the victory? इस जय को पाना कैसा मुमकिन है? Galatians 6:14. गलतियों 6 अध्याय का 14 वचन, There we see the solution for that, remedy for that. उस जगह में हम इस छुटकारे की बात को पढ़ते हैं। Read that verse 6:14. पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। To get the victory over world, here Saint Paul gave us the remedy for that. संसार के ऊपर जय पाने के लिए यहाँ संत पौलुस एक निवारण हमें बताते हैं। What did he say? वो क्या कहते हैं? He said, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. जिसके कारण मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। So what we should think? हमें क्या सोचना है? I am crucified. This world is crucified for me. ये संसार मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। This is what Saint Paul said here. यही वो संत पौलुस यहाँ कहते हैं। The world is crucified unto me
and I unto the world. ये संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। How it happened and when it happened? ये कैसा हुआ और वो कब हुआ? At the time of water baptism. जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया, We were dead to this triune sin. तब हम इस त्रिएक पाप के लिए मर गए। So that means this world was crucified for us. उसका अर्थ ये है कि ये संसार हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा दिया। Why Christ was crucified? क्यों यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया? For the world only. इस संसार के लिए ही। Jesus took the world, sin of the whole world and crucified. यीशु मसीह ने संसार भर के सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर उस क्रूस पर चढ़ गए। Now to get rid from this present evil world which is our enemy, अभी जो ये वर्तमान बुरा संसार जो हमारा शत्रु है, इससे कैसे छुटकारा पाना है? we must always say this world is crucified unto हमें me. ये हमेशा कहना है कि हम ये संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा गया। When a person is on the cross, जब एक मनुष्य क्रूस के ऊपर है, can he do anything there? क्या वो वहां कुछ कर सकता है? Anything which belong to the world being crucified, can he do anything, or is he connected with the things of this world? जब वो एक मनुष्य क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है, तो वो क्या संसार का कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में कर सकता है? No, नहीं, cannot. नहीं, कभी नहीं। Because he is already crucified. He is in between heaven and earth. क्योंकि वो पहले ही क्रूस पे चढ़ाया गया है, वो उस संसार के साथ उसका कोई नाता नहीं, वो आकाश और पृथ्वी के बीच में है। From there he cannot come down to enjoy the world and the worldliness. और वहां से वो नीचे आके संसार और संसारिकता का मनोरंजन नहीं ले सकता। That revelation should always be fresh in our lives. यही हमारे जीवन में ये प्रकटीकरण हमेशा ताजा रहना चाहिए। So this revelation will only come to us when we will have the revelation about the second coming of our Lord Jesus Christ. और ये प्रकटीकरण तभी हमारे जीवन में आएगा जब हमारे जीवन में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दर्शन या प्रकटीकरण When होगा। that revelation will be always fresh. My Jesus coming soon. My Jesus coming soon. I should not be conformed to this world, as Romans chapter 12 verse 2 it is written there. जैसा रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, हम हमेशा हमारे जीवन में इस प्रकटीकरण को नया और ताजा रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरा यीशु बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए मैं इस संसार के सदृश नहीं बनना। I will not be conformed to this world. मैं इस संसार के सदृश नहीं बनूंगा। Romans chapter 12 verse 2 it is written, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of their mind, that ye may prove that what is the good and acceptable and perfect will of God, in order to be seen in the rapture. रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन में इस रीति से लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करने से मालूम करते रहो कि हमें परमेश्वर यीशु के आगमन के लिए तैयार होना है। Yes, when we have the clear revelation about the second coming of our Lord Jesus Christ, then this world cannot keep us into his grip. जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक स्पष्ट प्रकटीकरण होगा, तब हम इस संसार के दृश्य नहीं बनेंगे। When we lose the revelation about the second coming of Jesus Christ, or about the rapture, then the worldliness will enter into our lives. लेकिन जब हम इस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रकटीकरण को नष्ट कर बैठते हैं, खो बैठते हैं, तब ये संसार और संसारिकता हम में प्रवेश करती है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Now finally, और आखिरी विषय, this body also kept us in its control. ये शरीर, ये देह ने भी हमें अपने बंधन में रखा है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। That's why when we read in the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, Romans chapter 8, रोमियो 8 अध्याय read verse 23. 23 वचन पढ़े। Romans 8:23. रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। See here the redemption of our body. यहाँ हम छुटकारे, शरीर के छुटकारे के बारे में पढ़ते हैं। That means this body also made us bound. It has kept us in its control. उसका अर्थ यह है कि इस शरीर ने भी हमें अपने नियंत्रण में रखा है और हमें बांधा हुआ है। And about this body, what the Word of God says, और इस शरीर के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? when we read Ephesians 1:14, जब हम इफिसियों 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं, please read quickly. This is the last point, and we are going to conclude the meeting. दया करके इस वचन को जल्दी पढ़े, और ये आखिरी विषय है और जल्दी हम सभा को
को खत्म करेंगे। Yes. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So here we have read that through the Holy Spirit we get the redemption from this body. इस जगह में हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस शरीर से छुटकारा पाते हैं। That's why Ephesians 4:30 it is written, grieve not the Holy Spirit. इसलिए इफिसियों 4:30 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को खेदित या दुखी ना करें, Because it is given to you for the last redemption of your body. क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमें हमारे आखिरी छुटकारे वरन शरीर के छुटकारे के लिए दी गई है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, Philippians 3:21 it is written, फिलिपियों 3:21 वचन ये कहता है, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body. वो अपनी शक्ति के प्रभाव से अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह को रूप बदल के अपनी महिमा के देह अनुकूल करता है। Jesus will free us from this vile body into his glorious body. यीशु मसीह ही केवल हमारे इस दीनहीन शरीर को अपनी महिमामय देह में बदल सकता है। How it could possible? ये कैसा मुमकिन है? It is according to the working whereby he is able even to subdue all things unto him, according to the working mean the work of the Holy Spirit. यहाँ वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में करता है। शक्ति के प्रभाव का अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। When we will give room to the Holy Spirit will help us to get victory over our vile body or all the unsanctified nature, and it will, by getting the victory in our vile body through the Holy Spirit, we will be fashioned and transformed into the glorious body of our Lord Jesus Christ at the rapture. जब यीशु मसीह के जब पवित्र आत्मा को हम हमारे जीवन में जगह देता है और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, तब ये पवित्र आत्मा हमारे दीनहीन शरीर को बदल के रूपांतर करते हुए परमेश्वर के मसीह के महिमामय शरीर में बदल देता है जब यीशु मसीह के आगमन में। Then very soon, as Psalm 90 and verse 10 it is written, we will fly away. और जैसा We will बदल fly away. Fly away. 90 जैसे Psalm भजन 10. संहिता 90 का 4 वचन में लिखा कि हम 10, उड़ जाएंगे, 10 वचन में लिखा कि हम उड़ जाएंगे, We shall fly away. हम उड़ जाएंगे। Shall we all stand up, please? आइए हम खड़े हो जाएं। Yes, brother and sister, ye shall know the truth, and the truth shall make you free, the Bible says. हाँ परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, हम वचन ये कहता है कि हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें छुड़ाएगा। And we have studied about this truth from 3 different angles. और इस सच्चाई के बारे में हमने 3 दिशाओं से देखा। First we saw who has made us bound. पहले हमने ये देखा कि किसने हमें बांधा हुआ है। Second place we saw what is the truth. दूसरा हमने देखा कि ये सच्चाई क्या है। And the third place we saw what are those things still which have bounded us, and how can we set free from them. और तीसरा विषय हमने ये देखा कि अभी भी कौन सी वो बातें हैं जिसने हमें बांध के रखा है और उन बातों से हम कैसे छूट सकते हैं। So now we have come to the truth. अभी हम लोग सच्चाई के पास आए हैं। We have known the truth. अभी हमने सच्चाई को जाना है। Let us surrender to the truth. आइए उस सच्चाई के लिए समर्पण करें। Let us surrender to Jesus. आइए यीशु के लिए समर्पण Let करें। us surrender to the Word of God. परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण Let करें। us surrender to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पण करें, so that we may get the complete deliverance from 7 things which has bounded us. ताकि उस 7 बातों से जिसने हमें बांध के रखा है पूरी रीति से छुटकारा पाए। Let's all fully surrender. आइए संपूर्ण रीति से समर्पण करें। Sing a chorus. अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ कर शरीर से